اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم المقام جناب سید انکسار حسین شاہ صاحب، سرپرست تحریک منہاج القرآن منڈی فیض آباد، محترم حضرت علامہ محمد ضیاء الاسلام قمر صاحب، محتمم جامعہ اسلامیہ طاہر العلوم بچے کی اور رہنما منہاج علماء کونسل ضلع ننکانہ، محترم محمد مشتاق سیفی صاحب، رہنما پاکستان عوامی تحریک ضلع ننکانہ، اور محترم محمد اقبال قادری صاحب، لائف ممبر تحریک منہاج القرآن، اور سٹیج کی زینت باقی تمام معزز مہمانان گرامی قدر، اور اس پنڈال کے اندر آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر تشریف لانے والے میرے عزیز بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے میزبان محفل محترم غلام عباس قادری صاحب کی طرف سے جو موضوع دیا گیا ہے، وہ موضوع ایسا موضوع ہے کہ اگر اس پر میں گھنٹوں بھی بولوں تو اس کا احاطہ کرنا ایک نشست کے اندر ممکن نہیں ہے، اور وقت کے دامن میں اتنی گنجائش بھی نہیں کہ اس کے اوپر تفصیلاً گفتگو کی جا سکے۔ آپ تمامی احباب کے علم میں ہے کہ ہماری محفل کافی دیر سے شروع ہوئی ہے اور وقت کافی گزر چکا ہے۔ مجھے موضوع دیا گیا ہے، یہ کئی سالوں سے محفل کے اندر آپ لوگ تشریف لا رہے ہیں، یہ غالباً 14 یا 15 سال سے الحمدللہ یہ سالانہ عظیم و شان محفل انعقاد ہو رہی ہے، اور میں ہر سال اپنا وقت اپنے معزز مہمانوں کو دیتا رہا تاکہ وقت بچے اور ہمارے جو معزز مہمان دور سے خطاب کے لیے تشریف لائیں وہ کریں، لیکن چونکہ میزبان کی طرف سے یہ 2 ماہ سے مجھے سختی سے حکم ہے کہ اس سال آپ نے میسج ضرور دینا ہے، اور میرا موضوع ہے تحریک منہاج القرآن اور قائد تحریک منہاج القرآن۔ یعنی کہ مجھے یہ کہا گیا ہے غلام عباس صاحب کی طرف سے کہ چونکہ میری محفل کے اندر صرف مانگٹا والا یا منڈی فیض آباد کے ہی مہمان نہیں آتے، میرے علم کے مطابق اس محفل کے اندر کم از کم 4 سے 5 اضلاع کے اندر سے لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ غلام عباس تحریک منہاج القرآن کا ایک عظیم رہنما ہے، نوجوان ورکر ہے، اور 15 سال سے یہ محفل سجا رہا ہے، اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس محفل کے اندر آج میرے مہمانوں کو جو تحریک سے ریلیٹڈ ہیں وہ تو تحریک کی خدمات سے اور حضور شیخ الاسلام کی ذات سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن جو مہمان دور سے آئے جن کو تحریک کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا، آج ان کے سامنے بھی تحریک اور قائد تحریک کا تعارف رکھا جائے۔ تو حاضرین محترم، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ قائد محترم کا تعارف کروانا اور تحریک منہاج القرآن کا تعارف کروانا، میں اگر صبح تک بھی بولتا رہوں تو اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، چونکہ تحریک منہاج القرآن ایک سمندر کی طرح تحریک ہے، اور قائد محترم ایک کثیر الجہد شخصیت ہے کہ اگر ان کی شخصیت کے ہر پہلو پر بات کی جائے تو گھنٹوں نہیں، دنوں نہیں، مجھے مہینوں درکار ہیں، اور یہ کوئی مبالغہ آرائی کی بات نہیں کر رہا۔ ابھی چند لمحے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ایک مشکل امتحان بھی ہے ضیاء الاسلام صاحب
कि इतने बड़े मौजू को 5-6 मिनट के अंदर समेटना मेरे लिए मुश्किल भी है, लेकिन मैं बात को अपने मौजू की तरफ आता हूं कि हाज़िर मोहतरम, दुनिया के अंदर जब आप गौर करते हैं तो बड़ी बड़ी अजीम शख्सियत गुजरी हैं और इस जमाने के अंदर भी मौजूद हैं। हर शख्सियत को जब आप गौर से देखते हैं तो उस शख्सियत के अंदर अल्लाह पाक ने कोई ना कोई खूबी पैदा की होती है। और आप इस दौर के अंदर या गुजरे हुए दौर के अंदर हमारी जितनी भी शख्सियत गुजरी है, जब हम उनकी जिंदगी का मुताला करते हैं, उनकी तहरीक का मुताला करते हैं, उनके वर्क का जायजा लेते हैं, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उस शख्सियत के अंदर अल्लाह पाक ने कोई एक खूबी रखी है या 2 खूबियां रखी हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई अजीम रहनुमा मुकर्रर है तो वो मुसन्नफ नहीं है, अगर कोई मुसन्नफ है तो वो मुकर्रर नहीं है, लेकिन अगर वो मुफस्सर है तो मुहद्दिस नहीं है, अगर मुहद्दिस है तो वो मुफस्सर नहीं है। हाज़िर मोहतरम, डॉक्टर ताहिर कादरी की जात एक ऐसी जात है कि अगर हम उनकी जिंदगी का ईमानदारी से जायजा लें, हसद, बुग़्ज़, अनाज की आग को उतार दें और उनकी जिंदगी का मुताला करें, उनके वर्क को देखें, तो आपको इसी एक शख्सियत के अंदर एक मुहद्दिस भी नजर आता है, एक मुफक्कर भी नजर आता है, एक मुअल्लिम भी नजर आता है, एक कानूनदान भी नजर आता है, एक कामयाब सियासतदान भी नजर आता है। हाज़िर मोहतरम, अगर मैं उनकी जात के सिर्फ पहलू गिनने लगूं तो मुझे बहुत सारा वक्त चाहिए। बात को मुख्तसर करता हूं। हाज़िर मोहतरम, चूंकि डॉक्टर ताहिर कादरी की मैंने मुख्तसर जिंदगी का तारफ आपके सामने मुख्तसर वक्त के अंदर रखना है। अगर हम उनकी जिंदगी को मोटे मोटे भी 5-6 पहलुओं के अंदर तकसीम करते हैं तो डॉक्टर ताहिर कादरी ने बेशुमार जिहतों के अंदर 40-45 साल के अंदर पाकिस्तान की धरती में नहीं बल्कि मशरक से लेकर मगरब तक ऐसी ऐसी खिदमत सर अंजाम दी है कि वो आपको पूरी दुनिया के अंदर ऐसी खिदमत किसी की नजर नहीं आएंगी। यहां रुक कर मैं एक बात अर्ज कर दूं कि यहां किसी को डिग्रेड करना मेरा मकसद नहीं है। जो जितना काम कर रहा है, जहां काम कर रहा है, अपनी ताकत के मुताबिक, अपनी बसात के मुताबिक अल्लाह उसको अजर दे। लेकिन मैं जो बात करूंगा, क्योंकि मुझे मौजू दिया गया है और मौजू के साथ इंसाफ हजूर ये होता है कि अगर आपको पेपर के अंदर मजमून आए, इलामा इकबाल के ऊपर मजमून लिखना है, तो फिर तालिब इल्म ने इलामा इकबाल को ही लिखना है। वहां मैंने सर सैयद अहमद खान को डिस्कस नहीं करना। मुझे चूंकि मौजू दिया गया है कायदे तहरीक और तहरीक मिनहाज कुरान का, तो मैंने बात स्पेशली उनकी जात पर करनी है। तो इसका कतई मकसद नहीं है कि मैं किसी आलम की, किसी लीडर की, किसी अजीम शख्सियत की इंसल्ट कर रहा हूं या उनको डिग्रेड कर रहा हूं। सबका काम आपके सामने है। आप देखें, गूगल का दौर है, साइंस का दौर है। आज के दौर के अंदर कोई चीज किसी से पोशीदा नहीं है। सबसे पहली जिहद जिस पर हुजूर शेखुल इस्लाम ने अजीम काम किया वो फिक्री जिहद है। फिक्री खिदमत क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 20-25 साल पीछे चले जाएं तो फिक्री तौर पर इतना ज़माना आ चुका था कि इंसान पाकिस्तान के अंदर मुसलमान फिरका वरायत की एक ऐसी जंग के अंदर मुब्तला हो चुके थे कि हम मसल की तौर पर एक दूसरे को काफर 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 कहते नजर आते हैं और मसले के नाम पर एक दूसरे के गले काटने तक हम गए। ये माहौल था पाकिस्तान के अंदर के नहीं, पर इंतहा पसंदाना सोच थी कि एक आलम दूसरे आलम को बर्दाश्त नहीं करता, एक लीडर दूसरे लीडर को बर्दाश्त नहीं करता, एक लीडर के वर्कर दूसरे लीडर को वर्कर बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन ये फिक्र इतनी खतरनाक थी कि पाकिस्तान के अंदर ये फिरका वरायत की जंग और इंतहा पसंदाना सोच इस हद तक चली गई कि हमारे अकाबरीन में से किसी की इज्जत भी महफूज नहीं रही। कोई पाकिस्तान का बड़ा आलम मुझे अब बता सकते हैं जो फतवों की जद से बचा हो, उसके पीछे वजह क्या थी कि हमने अपने कारकुनों का, हमने अपने पैरोकारों का, हमने अपनी तहरीक के वर्करों को हमने फिरका वरायत के अंदर और इंतहा पसंदी की तरफ लेकर गए। माहौल आपके सामने है। लेकिन हुजूर शेखुल इस्लाम ने 40 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक ही पैगाम दिया कि लोगों मसलक अपना अपना रखो, लेकिन हर मसलक के बड़े की कदर करो, हर मसलक के रहनुमा की इज्जत करो, हर आलम को सुनो, उससे इल्मी इख्तिलाफ जरूर करो, लेकिन किसी को गाली न दो, किसी को गाली न दो, किसी को गाली न दो। आपने फिरका वरीयत को कम करने में एक अहम किरदार अदा किया।
इंतहा पसंदाना सोच को खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। और फिर सिर्फ बैनुल मसालिक ही नहीं बल्कि बैनुल मज़ाहिबा महमी को फरोग दिया कि दूसरे मसलक के लोगों को ही बर्दाश्त न करें, बल्कि पाकिस्तान के अंदर दीगर अक़वाम भी बसती हैं। पाकिस्तान बनाने के अंदर जितना किरदार मुसलमानों का है उतना किरदार दूसरे मजहब के लोगों का भी था, उन्होंने भी कुर्बानियां दी, उनका भी मजहब है। आज अगर हम किसी काफिर के झूठे खुदा को गाली देंगे तो वो बदले के अंदर हमारे सच्चे खुदा को गाली देगा। हजूर शेखुल इस्लाम ने इसका भी रद्द किया कि बेशक उनका मजहब और दीन कोई और है, लेकिन इज्जत और अदब के साथ और इल्मी इख्तिलाफ से बात की जाए। ये कल्चर पाकिस्तान के अंदर पैदा किया। इसकी अगर जिंदा मिसाल देखनी हो तो ये कोई जज्बाती बात नहीं कर रहा। आप बड़े बाशाऊर बड़े लिखे लोग यहाँ बैठे हैं कि आप अपनी नजरों के सामने पाकिस्तान की जितनी बड़ी मजहबी जमातें हैं, जितनी बड़ी मजहबी जमातें हैं 2, 4, 5 सबका नक्शा अपने ज़हन के अंदर ले आए। एक लम्हे के लिए नेट पे जाएं, उनका एक प्रोग्राम नहीं 10-100 प्रोग्राम आप देख लें कि किसी भी मजहबी जमात के स्टेज के ऊपर उनके अजीम लीडर जो उस जमात का है जिसका वो स्टेज है वो दरमियान में बैठा होगा, लेकिन उसके दाएं बाएं आप जब नजर दौड़ाएंगे तो आपको दूसरे मसलक का कोई अजीम लीडर उस लीडर के साथ स्टेज पर बैठा हुआ नजर नहीं आएगा। जाएं गूगल के ऊपर तलाश करें। अगर एक ही स्टेज के ऊपर डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दाएं और बाएं सिर्फ बैनुल मसालिक वाले लोग ही नहीं, शिया भी, सुन्नी भी, वहाबी भी, देवबंदी भी, हर मसलक का बंदा अगर आपको नजर आए तो आपको मानना पड़ेगा कि बैनुल मसालिक और बैनुल मज़ाहिब रवादारी का अमली नमूना अगर किसी ने पेश किया है तो उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। अगर इससे कोई दूसरी बात नजर आए तो मैं अपनी बात का जिम्मेदार हूं। मैं जितनी भी बातें करूंगा उसका मैं जिम्मेदार हूं। अगर वो दिखा ना सकूं, अगर वो साबित ना कर सकूं तो तहरीक मिनहाजुल कुरान को छोड़ देंगे, कायद को छोड़ देंगे। लेकिन दोस्तों जरूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा समझे तो सही, हम तहकीक तो करें, रिसर्च तो करें। हम सुनी सुनाई बातों पे लगे हुए हैं। बात को मुख्तसर कर रहा हूं। जब बात यहां से आगे बढ़ी, पहले फिरका वरायत को हवा दी गई, फिर इंतहा पसंदाना सोच को पैदा किया गया, फिर जब इससे बात बढ़ी तो फिर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का वो माहौल बना कि एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 धमाके होते थे। कैसा नहीं होता था? एक दिन के अंदर 4-4, 5-5 धमाके होते थे। वो मुसलमान इस्लाम के नाम पर, नाम निहाज मुसलमान इस्लाम के नाम पर कभी मस्जिद को उड़ा रहे हैं, कभी मंदिर को उड़ा रहे हैं, कभी स्कूल के बच्चों को उड़ा रहे हैं, कभी इमाम बारगाहों को उड़ा रहे हैं और कभी औलिया के मजार को उड़ा रहे हैं। ये फिरका वरायत से बात चली, इंतहा पसंद बने और इंतहा पसंद की अगली स्टेज पर दहशतगर्दी होती है। जब दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी तो पाकिस्तान की धरती पर बड़े बड़े आलम मौजूद थे। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबकी मसाई को कबूल करे। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन पर टीवी चैनलों के ऊपर बैठकर पूरी दुनिया के सामने दहशतगर्दी को अगर डंके की चोट पर और तालिबान की फिक्र को अगर डंके की चोट पर किसी ने पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर रद्द किया है तो उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी है। मैंने बड़े बड़े आलम देखे, बड़े बड़े मशाइख देखे, टीवी के ऊपर जब तालिबान के बारे में सवाल होता था तो वो अपना मुंह बंद कर लेते थे। जुर्रत नहीं पैदा होती थी कि तालिबान के खिलाफ अगर आप फतवा देंगे तो शायद घर भी पहुंचे कि ना पहुंचे। ये हाल था। क्या ऐसा हाल नहीं था? क्या आप मेरी तायीद करते हैं? कोई आलम दीन तालिबान के खिलाफ फतवा देने को तैयार नहीं था। हम कहते थे तालिबान इस्लाम के हीरो हैं। पाकिस्तान का सुकून बर्बाद किया, आलमी इस्लाम का सुकून बर्बाद किया। फिर आलमी सतह पर जो पाकिस्तान की बदनामी हुई और आलमी इस्लाम की जो बदनामी हुई, हम किसी भी मुल्क में मुअज़्ज़ज़ उलमा जाते थे तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी तलाशी ली जाती थी, नंगा किया जाता था कि ये मुसलमान है, ये दाढ़ी वाला है, ये आका का गुलाम है, ये दहशतगर्द है। पूरी दुनिया के अंदर इन नाम निहाद लोगों ने, नाम निहाद मुसलमानों ने इस्लाम को दहशतगर्दी का दीन बना के साबित किया। तालिबान की आड़ के अंदर पूरा पाकिस्तान खामोश था, पूरी दुनिया खामोश थी। जाए नेट के ऊपर मैं आपको चैलेंज करता हूं, अगर इससे दूसरी बात मिले तो मैं इसका जवाब दे हूं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हर चैनल के ऊपर बैठकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कहा कि ये तालिबान, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनके धमाकों का, इनकी फिक्र का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है, ये इस्लाम का दुश्मन है। इस्लाम दहशतगर्दी का दीन नहीं बल्कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम प्यार का दीन है। पाकिस्तान के चैनलों पर धूम मचाई तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने मचाई। फिर दुनिया का सफर किया,
10 साल पूरी दुनिया का सफर किया, नेट पर हर चीज मौजूद है, मेरे पास वक्त नहीं मैं डिटेल में जाऊं क्योंकि मौजू मुझे बहुत बड़ा दिया है। मैं सिर्फ एक पहलू पर बात खत्म कर दूंगा, मेरे पास 9 पहलू थे जिन पर मैंने बात करनी थी। पूरी दुनिया का सफर किया, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर लेक्चर दिए, बड़े बड़े यूरोप के मुल्कों के अंदर थिंक टैंक्स के सामने बात की और उनको बुला के कहा कि आओ मैं आपको बताता हूं इस्लाम क्या है। फिर उनको 10 साल आपने पढ़ाया, बड़ी बड़ी वर्कशॉप की, बड़े बड़े लेक्चर्स दिए यूनिवर्सिटीज के अंदर, काफिरों के सामने बैठकर, कोई अपने मदरसे की अपने मिंबर पर नहीं, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, इमारत के अंदर। मैं दुनिया के किस किस मुल्क का नाम लूं, सारी दुनिया के चैनल सामने बैठे होते थे। वो पूछते थे कि इस्लाम क्या है, तो डॉक्टर ताहिर कादरी फरमाते थे, बताते थे कि इस्लाम ये है, इस्लाम सूफिया का दीन है, इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है, इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम इखलाक से फैला है। आपने ये साबित किया और फिर 600 सफात के ऊपर तालिबान के खिलाफ दहशतगर्दी के ऊपर फतवा लिखा। ये पूरी दुनिया के अंदर रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया, गूगल, यूट्यूब, जहां तक आपका जोर लगता है, अगर दहशतगर्दी के खिलाफ डॉक्टर ताहिर कादरी के अलावा बड़ा फतवा किसी का नजर आए तो मुझे बता देना, मेरी इस्लाह कर देना। वो 600 सफ़े का फतवा जब आपने लंदन के उसकी तकरीबें रूनुमाई की तो पूरे यूरोप का मीडिया सामने बैठा था। 3-4 घंटे आपने वो फतवा पढ़ के सुनाया कि इस्लाम दीन किस चीज का है और दहशतगर्दी के मुताबिक इस्लाम का मौक़िफ़ क्या है। फिर जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो पूरी दुनिया के सैकड़ों चैनल्स ने डॉक्टर साहब के उस फतवे को अपनी हेडलाइन के अंदर जगह दी। अरबी और इंग्लिश के अंदर सैकड़ों अखबारात के अंदर फ्रंट पेज पर छापा और 50,000 वेबसाइट के ऊपर डॉक्टर ताहिर कादरी का वो फतवा आज भी डिस्कस हो रहा है, जो डॉक्टर ताहिर कादरी ने तालिबान के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ दिया था, जिसके अंदर साबित किया है कि इस्लाम वो इस्लाम नहीं जिसका प्रचार तालिबान और उसामा बिन लादेन करता है, बल्कि इस्लाम वो इस्लाम है जिसका प्रचार हुजूर दाता साहब करते रहे, जिसका प्रचार बाबा फरीदुद्दीन करते रहे, जिसका प्रचार ख्वाजा करते रहे, जिसका प्रचार गौसे आजम करते रहे, वो इस्लाम है। फिर आपको आखिरी बात बताता हूं, मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। जब ये सारा कुछ हुआ, उन्होंने सुना, तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, अमेरिका के अंदर किताब है थिंक वर्ल्ड रिलीजियस की एक बुक है अमेरिका के अंदर इस्लामियात की, जैसे हम अपने मजहब को 5वीं 6वीं में बेसिक चीजें इस्लामियात की पढ़ाते हैं, वो अपनी थिंक बुक है रिलीजियस, अमेरिका के अंदर पढ़ाई जाती है, यूट्यूब पे पढ़ी है, जाए देखें। उसके अंदर वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में पढ़ाते थे और उसके अंदर तालिबान का पूरा चैप्टर लिखा था कि इस्लाम ये है, इस्लाम ये है, इस्लाम ये है। जो तालिबान करते थे, उड़ा देते थे, धमाके करते थे, कत्ल करते थे, बच्चों को उड़ा देते थे। वो अपने बच्चों को इस्लाम के बारे में बुग़्ज़, हसद और नफरत पैदा करने के लिए तालिबान और उसामा बिन लादेन का वो चैप्टर पढ़ाते थे। वर्ल्ड रिलीजियस बुक ठीक नाम से मौजूद है। जब डॉक्टर ताहिर कादरी 10 साल पूरी दुनिया के अंदर जंग लड़ी और पूरे आलम मगरब को बताया कि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन नहीं है, इस्लाम पुरअमन दीन है, तो फिर उनको मानना पड़ा। और जब 2012 के बाद वही बुक अगले साल नया एडिशन छपा तो उसके अंदर उनको तरमीम करनी पड़ी। एक तरफ तालिबान का चैप्टर है, फिर उन्होंने एक चैप्टर का इजाफा किया जिसका नाम रखा डॉक्टर ताहिर कादरी का इस्लाम। फिर उन्होंने बताया कि हाँ हम गलती पर थे। आप पढ़े उस बुक को, मैं चैलेंज कर रहा हूं, नेट पे मौजूद है, ये कोई हवाई बातें नहीं है। उन्होंने तस्लीम किया कि हम इस्लाम का मैसेज हम तक गलत पहुंचा है, हम इस्लाम को और समझते रहे हैं। इस्लाम तो वो है जो डॉक्टर ताहिर कादरी ने हमें आके बताया है कि इस्लाम अमन का दीन है, इस्लाम प्यार का दीन है, इस्लाम मोहब्बत का दीन है। दोस्तान मुकर्रम, मैं किस किस खूबी का बात करूं, किस किस पहलू पर बात करूं, वक्त के दामन के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है। मेरे पास कम अज कम आज 10 पहलू थे जिस पर मैंने बात करनी थी, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है तो मैं एक जिहत पर बात कर सका हूं, वो भी मुख्तसर, कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वहैयत को खत्म करने में मिनहाजुल कुरान का किरदार क्या है और बैनुल मज़ाहिब रवादारी को फरोग देने में मिनहाजुल कुरान का किरदार क्या है। और पूरी दुनिया के अंदर जहां नाम नहाद मुसलमानों ने पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम किया था, वो 20 साल लगे रहे, ये 50 साल लगे रहे धमाके करने के अंदर, ये साबित करने के लिए कि इस्लाम दहशतगर्दी का दीन है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुबारक हो आपको कि आपके धरती का वो सबूत जिसे दुनिया डॉक्टर ताहिर कादरी कहती है, 3 से 4 साल के अरसे के अंदर मशरक से मगरब दिन रात वो शख्स सोया नहीं जब तक उन्होंने आलम यूरोप की सोच को बदलकर उनकी किताबों के अंदर चैप्टर को बदलकर दम नहीं लिया, तब तक उसको नींद नहीं आई। ये कोई छोटा कारनामा नहीं है किसी की फिक्र को बदल देना, किसी की किताबों को बदलकर इस्लाम का असल पैगाम पढ़ाने देना।
दोस्तों, इकबाल ने कहा था, संगजनी करते रहे अहले वतन, सारी जिंदगी संगजनी करते रहे अहले वतन। ये अलग बात है कि दफनाएंगे अजाज के साथ। लोगों, आज वक्त है, आज वक्त है आपका जिस भी आस्थाने से ताल्लुक है, जिस भी आलम दीन से ताल्लुक है, हमें किसी से कोई बुग़्ज़ और हसद नहीं है। दोस्तों, आज हम चूंकि इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठे हैं, तो इमाम हुसैन का पैगाम भी यही था, आखिरी चंद जुमलों के अंदर देना चाहता हूं। करबला क्या थी कि करबला के अंदर तो दो शहजादों की जंग नहीं थी, वहां जंग हक और बातिल की थी, और बल्कि इससे बढ़कर भी मैं जुमला बोलूं तो वो जंग अहल और नाअहल की थी। वो जंग अहल और नाअहल की थी। इमाम हुसैन ये समझते थे कि जो बंदा मेरी बैत मांग रहा है वो इसके अहल नहीं है। जो अहल थे उनकी बैत करते रहे अहले बैत वाले। लेकिन ये अहल और नहल की जंग थी। दोस्तों, सबके पीर सलामत रहें, सबके आस्थाने सलामत रहें, सबके उस्ताद सलामत रहें, लेकिन ये आस्थानों और पीरों की जंग नहीं, ये आलम इस्लाम की जंग है। हमें कदर करनी होगी उस शख्स की जो इस अहल है कि वो पाकिस्तान के अंदर भी डंके की चोट पर हर मसले का हल दे सकता है, और यूरोप के चैनलों पर बैठ कर भी दुनिया के हर मसले का हल दे सकता है। आज पाकिस्तानी कौम को यह फैसला करना होगा कि हमने किसी अहल के पीछे चलना है या नहल के पीछे चलना है। ये तसव्वुर बस एक खुशगुमानी नहीं, ये तसव्वुर बस एक खुशगुमानी नहीं, लफ्ज मेरे फक्त मदहा खानी नहीं, ये हकीकत है लोगों कहानी नहीं। ये हकीकत है लोगों कहानी नहीं कि मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं, मेरे कायद का कोई भी सानी नहीं। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया।